Good morning to all. So, today's topic is Japan as the center of power. So, in the very first chapter, we have also read about that in the end of the Second World War, Japan is the only country who suffered from the nuclear attack. USA attacked nuclear bomb in the two cities of the Japan, that is Hiroshima and Nagasaki. But after that, it progressed rapidly. So, how can we say that if a country is attacked by a nuclear bomb and how it this country become a alternative power of center in the world? So, we also hear about the Japanese brand such as Sony, Panasonic, Canon, Honda, etc. They have a reputation for making high technology products. Japan has very few natural resources and import most of its raw materials. Means जापान के पास जो है वो बहुत ही अपने नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम हैं एंड मोस्टली द रॉ मटेरियल्स इट इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज वो दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करता है सो व्हाट इज़ द सोर्स सोर्स क्या है जो जापान की जो इकॉनमी है वो इतनी ग्रोथ कैसे हो रही है सो ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी जो ग्रोथ है जापान की बेस्ड ऑन हैवी मैन्युफैक्चरिंग सो लाइक ऑटोमोबाइल्स स्टील इलेक्ट्रॉनिक्स and others like mining and constructions. These are the base of the economic growth of the Japan. So even then it progressed rapidly after the end of the Second World War. Japan became a member of the Organization for Economic Cooperation and Development in 1964. So what is OECD? So Organization for Cooperation and Development is formed in 1961. It is originated from OEEC, Organization for European Economic Organization, that was formed in 1948 under the Marshall Plan. जो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि यूरोपियन यूनियन को सबसे पहले मार्शल प्लान जो दिया गया बाय द यूएसए एज अ एड उसके अंडर 1948 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो थी वो फॉर्म्ड हुई सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट जो है वो उसी का ही रिफॉर्म है तो इट इज़ अ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन उसके नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है तो जापान जो है इसका मेंबर 1964 में बना Now we talk about the economy of the Japan. So it is the third largest economy in the world. जापान की जो इकॉनमी है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट है इट इज़ द ओनली नेशन एशियन नेशन member of the G7. It is the 10th most populous nation in the world. So even it is the 10th most populous nation in the world, but अगर हम इसकी इकॉनमी की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट है और G7, what is the G7? G7 means group of 7 इंडस्ट्रियल नेशंस जो जितने भी इंडस्ट्रियल नेशंस हैं उन 7 इंडस्ट्रियल नेशंस का ग्रुप को हम G7 कहते हैं इट इज़ ऑल्सो अ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दे it's annually gathering for the political leaders to discuss and exchange the ideas of issues of global economy and security and energy and so on. So G7 formed in 1975. So only Japan एशियन मेंबर जो है सिर्फ जापान ही इस G7 का क्या है मेंबर है G7 में बहुत सी बिग नेशंस हैं जैसे फ्रांस है यूएसए है देन यूके है एंड इसका एशियन नेशन में सिर्फ जापान ही आता है नाउ
Japan is the only nation that suffered destruction caused by nuclear bomb. It is the second largest contributor to the regular budget of UN, contributing almost 10% of the total. Means UN budget, यूनाइटेड नेशन की जो बजट है, यूनाइटेड नेशन one of the biggest international organization, round about 193 countries are member of the UN. So 193 कंट्री में से जापान जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जो यूएन की बजट होती है, रेगुलर जो बजट होती है, लार्ज कंट्रीब्यूशन, जो कि 10% मीन्स 193 कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं यूएन बजट में और जापान उसमें सेकेंड लार्जेस्ट है। और जो सेकेंड लार्जेस्ट जो वो अपना जो कंट्रीब्यूट करता है वो 10% है। जापान हैज़ अ सिक्योरिटी अलायंस विद यूएसए सिंस 1951। सो एज पर द आर्टिकल 9 की अगर हम बात करें जापान की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो क्या बताता है कि जापानीज पीपल फॉर एवर रिनाउंस वॉर एज अ सॉवरेन राइट ऑफ द नेशन, दैट वॉर जो है वो हमारा राइट है, एंड थ्रेट एंड और यूज ऑफ फोर्स एज मीन्स ऑफ सेटिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इफ वी यूज फोर्स और थ्रेट मीन्स हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करने की बात कर रहे हैं। Although Japan's military expenditure is only 1% of its GDP, अगर हम जापान की बात करें कि वो अपनी मिलिट्री पे कितना पैसा खर्चता है, वो सिर्फ अपनी जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का सिर्फ 1% खर्चता है। स्टिल इट हैज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जापान की मिलिट्री जो है वो सेवेंथ लार्जेस्ट है वर्ल्ड में अगर हम देखें, लेकिन वो अपना सिर्फ 1% जीडीपी अपने मिलिट्री पे खर्चता है। तो हाउ पावरफुल इट इज़, कितना पावरफुल है या कितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है जापान। तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अगर हम बात करें तो रिसेंटली पीएम जो इंडिया के पीएम ने, मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जो है वो अलाउंस, जो एक अनाउंसमेंट की है, किसके लिए, हमारी पीपल, लोगों के लिए। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये हमारे जीडीपी का 10% है। तो जीडीपी का 10% जो है 20 लाख करोड़ है। तो सिर्फ जापान सोचो कि सिर्फ अपने जीडीपी का 1% खर्चता है और अपनी मिलिट्री पे, और तब भी उसकी मिलिट्री जो है वो सेवन्थ लार्जेस्ट है। मीन्स इकोनॉमिकली वो कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इवन कि उसके ऊपर वो एक ओनली नेशन है जिस पे न्यूक्लियर बॉम्ब की जो है वो अटैक हुआ था। सो ये रहा आपका जापान के बारे में जो कि आपकी बुक में था। और आपके राइट हैंड साइड में आपके कार्टून होगा, यहाँ पे दिखाया है, एसिमो इज़ द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस ह्यूमनाइड रोबोट वॉकिंग विद द पर्सन वाइल होल्डिंग हैंड। जापान की जो होंडा कंपनी है वो ह्यूमनाइड रोबोट्स बनाती है जो कि मोस्ट एडवांस रोबोट्स हैं इन द वर्ल्ड में। ये भी क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में मे बी आ जाए। तो इन द एंड जो क्वेश्चन है आपका, कैन जापान इफेक्टिवली फंक्शन एज अ अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, इस क्वेश्चन को आप जितने भी आपने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं, पूरा वो टॉपिक पढ़ा है, इसको आप जो है अपने अकॉर्डिंगली इसको नोट्स में, पॉइंट्स में इसको जो है वो अरेंज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप दे सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड अदर पॉइंट्स फ्रॉम योर साइड यू कैन। And the last question is also find about the major agreements signed during the high level bilateral visit between the two nations in the recent past. Two nations, I recognize that India and Japan, because लास्ट हम जितने भी टॉपिक पढ़ चुके हैं इन द एंड हम उसको इंडिया के साथ उनके रिलेशन से कंपैरिजन पढ़ते हैं। तो हम इस यहाँ पे टू नेशन में जापान और इंडिया को ही लेके चलेंगे। मैं आपको जो बायोलेटर कुछ इम्पॉर्टेंट जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, मैंने एक अलग से उनको जो है वो एक नोट्स बनाए हैं, आई विल सेंड यू, मैं वो भी आपको सेंड कर दूँगी। उसके बाद दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।